جی میں ہوں آپ کا میزبان رو توقیر. آج ہمارے مہمان ہیں ینگ لیڈر بیرسٹر سہیل منظور گل. سہیل منظور گل ننکانہ صاحب پنجاب اسمبلی کی صوبائی جو سیٹ ہے حلقہ نمبر 134 سے ایم پی اے کے امیدوار بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمپین کیسی جا رہی ہے اور الیکشن میں ان کی کیا پلان ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سہیل صاحب؟ ٹھیک جی ٹھاک اللہ ہیں؟ کا خیریت شکر ہیں؟ بالکل الیکشن ٹھیک. کمپین کیسی جا رہی ہے جی؟ جی ماشاءاللہ زبردست جا رہی ہے اور بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. اور سچی بات ہے خان صاحب کا جو نظریہ ہے اور ان کا جو جنون ہے لوگوں میں وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. اور سچی بات ہے ہمیں اتنی کیمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. لوگ خود کیمپین کر رہے ہیں. جہاں جاتے ہیں کیمپین کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ٹولیاں بنا کر اور پہلے ہی پمفلٹس پکڑ کر گھر گھر پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور تو ہمارا کام تو بہت آسان ہے اور انشاءاللہ 8 فروری کا دن بتائے گا کہ فتح ہماری انشاءاللہ ہو چکی ہے. چلیں الیکشن کمپین پہ تو ہم بات کرتے چلے جائیں گے, چٹ چیٹ کریں گے ابھی اور سیاست پہ بھی بات کریں گے. تو یہاں پہ چائے اور پراٹھا بڑا اچھا ملتا ہے. آپ نے کچھ آرڈر کیا ہے یا میں کر دوں؟ جی آپ کو ابھی کھلائیں گے جی. اچھا ضرور آپ مہمان ہیں لیکن میں انشاءاللہ. یہاں پہ کھاؤں گا جی جو ان کا ہے نا وہ شکر اور مکھن والا پراٹھا جو ہے. سنا ہے کہ آپ وہ بڑا پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ بڑا فیمس ہے. جی وہ چائے کے ساتھ میں بالکل عام سا بندہ ہوں جی. جی. اور کوئی مجھے پروٹوکولز کا شوق نہیں ہے اور میں عام آدمی ہوں, عام ورکر ہوں اور عام لوگوں میں بیٹھ کر مجھے کھانے کا بھی شوق ہے. آپ سے علیحدہ میں نے ویسے ان دکان والے صاحب سے یہ ڈسکس کیا ہے کہ یہاں پہ سہیل منظور گل صاحب پہلے بھی آتے ہیں تو اس نے کہا جی بالکل یہاں پہ آتے ہیں اور وہ یہ والا پراٹھا پسند کرتے ہیں. تو بالکل جی ہم بھی پھر آپ اگر ہمیں شکر مکھن والا پراٹھا دے دیں اور ساتھ چائے دے دیں تو آپ کے ممنون ہوں گے. جی ضرور کھلائیں جی توقیر بھائی کو, ان کو پسند آئے گا. چلیں لیٹس سی جی دیکھتے ہیں. اچھا الیکشن کمپین آپ کر رہے ہیں, کیا الیکشن کمپین میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے؟ سر مشکلات جو ہیں وہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کے سامنے ہیں جو مشکلات ہیں. نہیں مجھے تو کچھ نہیں لیکن نظر آ رہا. میرا خیال ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی کمپین کر رہے ہیں, آزاد گھوم رہے ہیں. اگر کوئی ہے تو بتائیں. اگر توقیر بھائی آپ کو نہیں پتا تو پھر کسی کو بھی نہیں پتا. آپ نے آج دیکھا ہے کہ جس طرح ننکانہ سے ہمارے فلیکسز اتارے گئے ہیں, پولیس کی نگرانی میں اتارے گئے ہیں, ایڈمنسٹریشن نے اتارے ہیں. اچھا جی. اور آپ کو ایک اور بات آپ نے پھر کہنا ہے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. ہمارا جو پی 134 کے ریٹرننگ آفیسر صاحب ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا جلسہ ان کا لیڈر آیا ہوا تھا. تو اچھا جی. یہاں میں نے سنا ہے کہ وہ آیا ہوا تھا, عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ کوئی آیا ہوا تھا. صحیح. تو وہ وہاں پہ حاضریاں لگوا رہے تھے, اس اچھا جی. جلسے پہ گئے ہوئے تھے. اور آپ لیول پلینگ فیلڈ کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ریٹرننگ آفیسر خود ایک سیاسی جماعت کے جلسے میں پہنچا نہیں وہ ہوا تھا. ریٹرننگ آفیسر آپ کا پی پی 134 والے حلقے سے تھے یا کسی اور سے؟ جی پی پی 134 کے ریٹرننگ آفیسر. اچھا یہ تو اب اس سے زیادہ اب آپ کو میں کیا بتا سکتا ہوں. نہیں یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایویڈنس, کوئی ثبوت وغیرہ کوئی ایسی بات ہے آپ جی کے پاس؟ بالکل, یہ یا کوئی میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ صحافیوں نے ننکانہ کے لوگوں نے ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں. آپ کو بھی دیتے ہیں ویڈیو. اچھا آپ چلیں میں بالکل بھی دیکھ ضرور جی سکتے میں ہیں بھی جی. دیکھوں گا. میں کیونکہ شام سے بزی تھا کچھ اسی طرح سے بس سیاسی سلسلوں میں. اچھا تو الیکشن کمپین میں تھوڑی مشکل آ رہی ہے سر, بالکل مشکلات آ رہی ہیں لیکن ہم کوئی گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم پہلے ہی ریڈی تھے, ہمیں پتا تھا یہ سب انہوں نے کرنا ہے. اور یہ جو پہلوان جو ہار رہا ہوتا ہے وہ پھر ککے اور مکے مارنا شروع کر دیتا ہے. جو جیت رہا ہوتا ہے وہ تو ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਦੇਣ. ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਕਾਂ ਨਾਲ. تو کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عمران خان ہوگا. ننکانہ میں بھی عمران خان ہوگا, 112 میں بھی عمران خان ہوگا, 134 میں بھی, 135 میں بھی عمران خان ہوگا اور پورے پاکستان میں بھی عمران خان ہوگا. نہیں پورے پاکستان میں تو عمران خان ہوگا. چلیں آپ کا جو اپنا الیکشن ہے صوبائی اسمبلی کا
जो 134 हल्का है ननकाना साहब जी, शहर का जी। और मंडी फैजाबाद का, आपका क्या ख्याल है कि आप कितने परसेंटेज पे हैं या कितना मार्जिन होगा, कोई आइडिया? सर मैं परसेंटेज तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इतनी लीड से जीतेंगे कि आज तक ननकाना के अंदर इतनी लीड किसी कैंडिडेट को किसी भी जमात के को मिली नहीं होगी। बैरिस्टर सुहेल साहब, आप शायद कुछ बड़ा दावा ना कर रहे हो, क्योंकि आपका जिस शख्स से मुकाबला है और ख़ास तौर पे जिनके पास मुस्लिम लीग नवाज का टिकट है, वो शायद 3 दफ़ा पहले एमपीए रह चुके हैं और अब उनका ये चौथा इलेक्शन है, तो और जी आपका ये पहला इलेक्शन है। जी 2 दफ़ा वो एमपीए रह चुके हैं, ये 2 तीसरा दफ़ा। इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर वो 2 दफ़ा रह चुके हैं तो मेरी फैमिली भी 4 दफ़ा रह चुकी है। बिल्कुल। तो हमारे धड़े हैं, हुँ, हमारे दोस्त हैं। हुँ। और सच्ची बात है, अब खान साहब का ही वोट है और वो इतना ज़्यादा है कि उसको अब रोका नहीं जा सकता। और कि कोशिश करके देख लें, 8 फरवरी आने वाली है और 8 फरवरी की शाम को आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ननकाना में इनकी जो सोच है, इनको बहुत बड़े सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। अच्छा, बड़े सरप्राइज़ मिलने वाले हैं जी। बैरिस्टर सुहेल मंजूर गिल बता रहे हैं कि मुखालफिन को बड़े सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। चलें, लेट्स सी जी, हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है, वो शहर ननकाना साहब में कहीं नज़र नहीं आ रही। उस पे कोई आपका कोई प्लान किया हुआ है कि हम इस तरह से चलेंगे या? सर शहर ननकाना में मैं कोई लाओ लश्कर के साथ नहीं फिरता, ना मेरी ये आदत है, ना मेरा कैंपेन का ये स्टाइल है। मैं 1-2 गाड़ियों पे जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ, और बड़ी गाड़ियों पे भी मुझे फिरने का शौक़ कोई नहीं है। बड़ी गाड़ियां हैं ज़रूर मेरे पास, लेकिन मुझे थोड़ी शर्म आती है बड़ी गाड़ियों पे फिरने में। मैं छोटी गाड़ियों पे फिरता हूँ। लाओ लश्कर के साथ नहीं फिर रहा, मैं घर घर जा रहा हूँ, दरवाजे नॉक कर रहा हूँ, वार्ड वाइज जा रहा हूँ, बाज़ारों में फिर रहा हूँ। और ये जो मेरी कैंपेन है, असल कैंपेन होती ये है जो मैं कर रहा हूँ। चलें, ये तो आपका प्लान है ना कि आप किस तरह से कैंपेन करते हैं, कोई किस तरह से कैंपेन करता है। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका जो भी प्लान है आप उस पे कैंपेन करें। ये बताइए कि जब आप कैंपेन पे निकलते हैं, तो लाज़मी बात है कुछ ना कुछ वाक़यात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि आदमी बड़ा हैरान होता है या आदमी बड़ा खुश होता है या बड़ी दिलचस्पी की बात कोई हो जाती है। कोई ऐसा 1-2 वाक़या हमारे साथ शेयर करें लोगों के सर साथ? वाकयात तो रोज़ ही होते हैं। एक तो मैं जब भी निकलता हूँ, मुझे जहाँ जाना होता है मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरी गाड़ी को देखकर लोग मुझे रोक रोक कर सेल्फियाँ बनवाते हैं अच्छा कि ये जी। खान साहब के वो तो कैंडिडेट हैं। इसलिए बनवाते हैं ना कि आप माशाल्लाह नहीं खूबसूरत नहीं बहुत नहीं हैं और नहीं नहीं, यंग हैं। मैं नहीं कोई खूबसूरत नहीं हूँ, ये आपकी मेहरबानी है, आपकी आंखों से खूबसूरत लगता हूँ। लेकिन खूबसूरत मैं इस वजह से हूँ कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ। वो मेरी वजह से नहीं मेरे साथ सेल्फियाँ बनाते, वो इसलिए बनाते हैं कि ये इमरान खान का कैंडिडेट आप है। हर चीज़ इमरान खान पे तो ना ना डालें, आप भी तो तो कुछ हैं ना। आप भी माशाल्लाह यंग हैं, खूबसूरत हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे पले बड़े हैं, लोगों से आपके ताल्लुकात हैं। आपका अपना भी तो कुछ ना कुछ है ना। सर भाई हैं, दोस्त हैं, सब प्यार करते हैं। लेकिन सच्ची बात है, मैं तो मलंग आदमी हूँ और इस मलंग को खान साहब ने टिकट दी है। और सच्ची बात है, इमरान खान की वजह से लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। अच्छा, चलें, आप बता रहे थे कि कुछ वाक़यात, कुछ ऐसे वो सर यादगार मैंने लम्हात। एक तो इंसिडेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं ननकाना में फिर रहा था तो मोटरसाइकिल के ऊपर एक रेडी बान मोटरसाइकिल पे उन्होंने हमारी फ्लैक्स पीछे लगाई और वो गली गली वो फिर रहे थे। वो एक बड़ा अच्छा नज़ारा था। और एक जो वाकया नहीं, आपने वो जो सॉरी, पहले मैं आपको रोकूँगा यहाँ पे, वो जो रेडी पान गली-गली फिर रहा था या मोहल्ले में फिर रहा था, तो क्या आप फिर गाड़ी रोक के उसे मिले भी या आपने इसको पेंडिंग किया कि दोबारा मिलेंगे? नहीं क्या नहीं, हुआ? मैं ज़ाहिर है उसको मिला, मुझे खुशी हुई तो कोई उसको देख। सेल्फी वगैरह या कोई तस्वीर उसके साथ ऐसा कुछ उसकी वो दोस्तों? उसकी उसकी हमने खुद खींच ली थी, वो अच्छा, तो सही है, हमने ठीक। उनके साथ क्यों बनवानी थी, उसकी उसकी दिलजोई उसकी की आपने? उसकी दिलजोई की बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। और हमें खुशी हुई उसकी। और एक ननकाना शहर में खास करके मैंने गोल चक्कर पे राउंड निकाला सब दुकानों पे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, लोगों ने मुझे डांटा वहाँ पे कि तुम इमरान खान की तौहीन कर रहे हो उसका वोट मांग कर।
हमारे पास अच्छा, ऐसे वोट लोग भी मिले जिन लोगों ने कहा कि आप इमरान खान एक के लिए दो वोट लोग नहीं, पूरे बाजार ने कहा मुझे कि तुम तौहीन कर रहे हो इमरान खान से का वोट हमारे से मांग कर। हमारे से वोट नहीं मांगना, हमने खुद आके देना है। ये किस जगह की आप बात बता रहे हैं? ये आपका जो गोल चक्कर है बेरी चौक की, यहाँ अच्छा, पर। इसका मतलब है ननकाना साहब शहर में इतना ज्यादा पीटीआई या इमरान खान का वोट है? सर वैसे ही है, आपको सब पता है तकीर भाई, अब आप जरा नहीं, मुझे अगर मासूम बन पता रहे होता हैं। नहीं, मुझे अगर पता होता तो मैं आपसे ना पूछता। मैं कोई इतना ज्यादा बाखबर तो नहीं हूँ। खैर, अच्छा ये बताइए, आप उल्टा मुझ पे तो सवाल ना करें जी। अच्छा, आप ये बताइए कि ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट में और आपके हल्का में खास तौर पे ननकाना शहर और मंडी फैजाबाद में बहुत ज्यादा मसाइल हैं। देखें, मैं अगर एक एक सवाल करने लगूँ तो लंबा हो जाएगा। सेहत की सहूलियात नहीं है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, साफ पानी के मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट के बड़े मसाइल हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि आपका कोई प्लान तालीम के हवाले से या सेहत के हवाले से कोई माइंड बनाया होता है ना आदमी ने कि मैं अगर जीता तो मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा। सर हमने हमारी पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट में हम इलेक्शन तो लूज़ कर गए थे, लेकिन ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला थे, खान साहब वज़ीर आज़म थे। हमने तो ये सारे काम करके दिखा चुके हैं। हमें अब अपना अपना आप मनवाने में इसलिए परेशानी नहीं महसूस होती कि हम ये सब कुछ करके दिखा चुके हैं। मसलन क्या करके दिखाया है जी? हमने ननकाना के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का क्याम यहाँ पे शुरू किया, जो ये यूनिवर्सिटी तो नून कोई और भी क्लेम करता है कि हमने बनवाई है। सारी दुनिया जानती है जी। क्लेम जो भी करता रहे वो अच्छा जी, चलें, यूनिवर्सिटी बनवाई है, आगे जी। दिन को दिन और रात को रात ही कहना चाहिए, और लोगों को पता है कौन सही, लेके आया है। सही। ट्रॉमा सेंटर यहाँ का, यहाँ की इंडस्ट्रियल इस्टेट। मंडी फैज़ाबाद में सबसे बड़ा मसला सीवरेज का था, 80 करोड़ रुपया उसका मंजूर हुआ, 40 करोड़ रुपए की पहली किस्त आई, काम शुरू हो गया। और इन्होंने जुल्म की आखिर की कि वो ही फंड हुकूमत हमारी जाने के बाद इन्होंने रोक लिया और कमीशनों पे लड़ाइयाँ शुरू कर दी कि हमें उस 40 करोड़ पे कमीशन दें। उस कमीशन की लड़ाई में आज वो काम रुका हुआ है। सीवरेज का मसला मंडी फैज़ाबाद का सबसे बड़ा मसला है। पहले जब मेरे ताया जावेद मंजूर गिल एमपीए थे, या उन्होंने सीवरेज का मसला हल किया था, या हमारी पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट में हम वो मसला हल करने जा रहे थे, जिसको इन्होंने अपने कमीशन की लड़ाइयों के पीछे नून लीग वालों ने चलें, उसको ये बंद बताइए कि करवाया। आपका क्या प्लान है सेहत और तालीम के हवाले से? आपके क्या इरादे हैं या क्या माइंड बनाया है, क्या करेंगे? सर जो भी अवाम की ज़िंदगियां बेहतर करने के लिए जो भी कर सकते होंगे वो सब करेंगे। हम इंशाल्लाह, हमारा विजन है कि हम बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएं, ताकि यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो सकें, हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ सकें, हमारी नस्ल चेंज हो सके। क्योंकि तकीर भाई, हालात और चीज़ें चेंज तब भी होती हैं जब तालीम आती है। हमारा प्राइम फोकस तालीम पे है, और वो जो बुनियाद हमने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की रखी है, इंशाल्लाह पहले तो उसको कंप्लीट करेंगे, एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी क्लासेस के साथ वहाँ शुरू हो जाए। क्लासेस तो खैर पहले ही स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर जो बिल्डिंग है वो अभी तमीर का मराइल उसके जारी हैं। उसके बाद जो हेल्थ के मसाइल हैं सर, सेहत के, हमने ननकाना सिटी के अंदर तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं। ट्रॉमा सेंटर है, डायलिसिस सेंटर है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन जो हमारी रूरल बेल्ट है, जिसमें मंडी फैज़ाबाद है, जो मेरे हलके में आती है, वो मेन मंडी फैज़ाबाद है, मांगटा वाला है, वहाँ पर बिल्कुल सेहत का फुकदान है। जी। और इंशाल्लाह हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी, इक़्तिदार दिया, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक अच्छा हॉस्पिटल जो है मैं मंडी फैज़ाबाद के इलाके को भी दूं, जो कि अभी वहाँ पे ऐसी कोई सहूलत नहीं। प्राइवेट वहाँ पे एक फैमिली है, वो वहाँ पे एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, मुफ्त इलाज करते हैं वहाँ पे। वो अल्लाह के लिए उन्होंने सही। किया हुआ है, लेकिन सरकारी सतह पर वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और इंशाल्लाह मंडी फैज़ाबाद की आवाम को मैं इंशाल्लाह ये
सहूलत ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। बिल्कुल ठीक और है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ऐड करना जी, चाहता हूँ, जी। क्योंकि मैं नौजवानों की भी तर्जमानी करता हूँ और इसका काफ़ी लिंक सेहत के साथ भी है। इंशाल्लाह जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, इंशाल्लाह उनको भी मेरी कोशिश होगी कि मैं ननकाना साहब और मंडी फैज़ाबाद जो मेन इलाके हैं हमारे, वहाँ पे एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो मैं अपने यंगस्टर्स को दूं और उनके खेल के लिए मैक्सिमम अपने इलाके में प्ले ग्राउंड्स जो हैं वो उनको मैं अवेलेबल कर सकूं, क्योंकि सरकारी ज़मीनें काफ़ी पड़ी हुई हैं और उनका कोई यूज़ भी नहीं है, खाली पड़ी हुई हैं, और वहाँ पे हम ये फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट की हुई हैं कुछ जगह, मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनको प्ले ग्राउंड्स में कन्वर्ट करने की चलें जी, ये कोशिश तो आपने करूँगा बड़ी जी। अच्छी बात कर दी। ननकाना साहब के लोगों का ये मसला जो है, या यंगस्टर का जो ये आप ये प्रॉब्लम जो है। ट्राई करें, ठंडा ना जी, हो जाए बिल्कुल जी, आपको। बिल्कुल। पराठे भी हमारे आ गए हैं जी, ये भी ट्राई करते हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। और ननकाना साहब के जो यंगस्टर हैं, उनके खेलों के मसाइल या स्पोर्ट्स के मसाइल तो हल हो गए हैं, क्योंकि आज ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने आज जलसा में ये ऐलान किया है कि अगर वो हुकूमत में आए, तो वो ननकाना साहब में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाएँगे। और इसी तरह से सुहेल मंजूर गिल साहब ने कहा है कि मैं ननकाना साहब और मंडी फैज़ाबाद में अपने हलके में इंशाल्लाह खेलों के मैदान के हवाले से बड़ी अच्छी सहूलियत दूंगा। और अगर अगर ननकाना साहब मियां नवाज शरीफ साहब के वादे पे रहेंगे तो फिर बन गया। चले, फिर बना कोई भी लें। आए जी, कोई भी आए। कुछ इसी तरह की बातें आज मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कर रहे थे, जो सुहेल साहब कर रहे हैं। खैर, जो भी आए जी, ननकाना साहब को कम से कम खेलों के मैदान तो मिल जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपसे ये करूंगा जी, हमारे खास तौर पे आपके मंडी फैजाबाद में सुहेल मंजूर साहब, बैरिस्टर साहब, इंक्रोचमेंट के बड़े मसाइल हैं, नाजायज तजावजात के बड़े मसाइल हैं। आपने देखा होगा कि इवन रोड तक को लोगों ने सर किया हुआ है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं तोकीर भाई, वो गरीब लोग हैं, रेडी बान हैं, उनको हम ये तो कह देते हैं कि यहाँ से उठ जाओ। आप एंटी इंक्रोचमेंट वहाँ पे करते भी हैं, वो महीने बाद 2 महीने बाद उनको आप उठा देते हैं वहाँ से जाके, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम उनको अल्टरनेटिव क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। मंडी फैज़ाबाद में इंक्रोचमेंट का मसला हल करने का एक ही तरीका है, उन रेडी बानों को आप अल्टरनेटिव जगह प्रोवाइड तो करें। अगर आप जीते हैं तो आप फिर जी इसको करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये मैं अपना विजन ही बता रहा हूँ जी, और ये सोच ही बता रहा हूँ कि इंक्रोचमेंट का मसला मंडी फैज़ाबाद का तब भी हल होगा अगर हम उनको कोई अल्टरनेटिव जगह प्रोवाइड करेंगे। और वैसे उसके अलावा किसी गरीब आदमी पे उसकी उसकी जो रोज़ी है उस रेडी पे चल रही है और उसको उठा देना उसके बच्चों के साथ ज़्यादती है, उसकी फैमिली के साथ ज़्यादती है। तो आप उनको पहले हम जगह प्रोवाइड करें जहाँ पे वो अपना रोज़गार चला सकें, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इंक्रोचमेंट के बिल्कुल ठीक है। मसाइल हल हो जाएंगे। बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि आप कैंपेन पे रोज़ निकलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आम लोग ये बात करते हैं कि जी बड़ा खौफ का समा है और बड़ा डर है, और पता नहीं किससे डर है, क्या डर है। तो आपने भी कोई ऐसा डर महसूस किया है, या लोगों ने आपसे कोई शिकायत की, शिकवा किया है, या लोग ठीक हैं, सर नॉर्मल है? हमने भी खौफ के बुत तोड़ दिए हैं नहीं, और आप पे अवाम ने भी था तोड़ वैसे दिए। खौफ? आपको भी था खौफ? खौफ अल्लाह का ही है जी। तो फिर कौन से बुत तोड़ दिए? खौफ अल्लाह का है, तो अल्लाह का तो खौफ अभी भी है जी। हम्म, अल्लाह से डरते हैं और वो हमेशा डरते रहेंगे। हम्म। कुछ अल्लाह के बंदों का खौफ भी होता है। नहीं, अल्लाह का ही खौफ है जी, अल्लाह अल्लाह का के खौफ बंदों है। का कोई खौफ नहीं। बिल्कुल ठीक है। और ये अल्लाह वालों का हो सकता है खौफ, लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उनसे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी कोई। की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके अपोनेंट जो लोग हैं, जो आपके एंटी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं आ, उन्हीं आ, की आ, बात कर आ, रहा हूँ। आ, और इससे आगे तो मुझे नहीं पता कि नहीं नहीं कोई और सर, भी खौफ है। उनसे उनसे तो बिल्कुल खौफ नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसी कोई खौफ बात नहीं है। अच्छा, मैं कोई नहीं। आखिरी एक सवाल करूंगा आपसे, उसके बाद ओपन माइक हम एक सवाल छोड़ते हैं। आखिरी सवाल ये है जी, कि जो सियासत है, इसमें तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त, ये सारा खत्म होता जा रहा है, और ये बड़ा अलमिया है। इस पे कुछ आप कहेंगे कि खास तौर पे लीडरशिप को, या जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, और उसके साथ साथ फिर वर्कर्स को भी समझाना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आपको? तोकीर भाई, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और ये वाकई अलमिया, आपकी बात दुरुस्त है। मैं
इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। आपने सियासी इख्तलाफ भी रखना है तो उसमें वज़ादारी और तहम्मुल मजाजी और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं बिल्कुल करनी ठीक। चाहिए। बाकी हम इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट कर रहे होते हैं, हमने जलसों पे एक दूसरे के खिलाफ बातें करनी होती हैं, लेकिन तहजीब का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखें ना, हमारा मुल्क, हमारा जो फाउंडिंग फादर हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जी उनको लियाकत अली ख़ान ने जवाहरलाल नेहरू के कुछ पर्सनल मामलात के बारे में लेटर्स ला के दिए कि हम इसको यूज़ करें सियासत में। जी तो कायदे आज़म ने रिफ्यूज़ किया, बल्कि उल्टा डांटा जी। कि वो मेरा सियासी मुखालिफ है, मैं उसकी ज़ाती ज़िंदगी से मेरा कोई लेना देना क्या नहीं। खूबसूरत बात है। तो हमें तो ऐसी बातों की या ऐसे बिल्कुल कामों हमें, की पैरवी करनी चाहिए जी ना जी। हम वो हमारे फाउंडिंग फादर हैं, हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जी और ये तौकीर भाई, ये हमारे सियासत में बड़ी रवादारी थी। यस और बिल्कुल। ये 85 के बाद जब एक क़यादत 85 के बाद इस मुल्क पर मुसल्लत हुई, तो ये गंद सियासत में लाने में उनका बहुत रोल था। जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये असम्बली के फ्लोर पर और बाहर होता था, ये असल में बदतमीज़ी 85 के बाद शुरू हुई। चलें आप चाय की चुस्की भी लें, चाय बड़ी मज़ेदार है जी। जी जी। और इस चाय की चुस्की के बाद जैसा कि हमारे सामीन और नाजरीन को भी पता है और आपको भी पता है कि हम एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं जो ओपन माइक होता है या ओपन सवाल होता है, कि उसमें हमारा जो मेहमान है वो जो भी कहना चाहे, जिससे भी कहना चाहे, वो अपना पैगाम या अपना जो है मैसेज वो दे सकता है लोगों को। तो आपके लिए भी ओपन माइक है जी, आप जो भी लोगों से कहना चाहें या अपने किसी प्यारों से कहना चाहें तो प्लीज़। जी, मेरा पैगाम अपने हलके की आवाम को है, बिलखसूस नौजवानों को के लिए पैगाम है मेरा, कि आप पर इमरान खान साहब ने बहुत एतमाद किया है। आपको, आपके ज़िले को, आपके हलके को में उन्होंने एक नौजवान को टिकट दी है, उन्होंने नौजवानों को पहचान दी है, उन्होंने नौजवानों को आवाज़ दी है यहाँ पे। ये अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि खान साहब ने जो आप पे एतमाद किया है, आप उस एतमाद पर पूरा उतरें। और ये इलेक्शन जो है, ये इस मुल्क का एक डिसाइसिव इलेक्शन है, फैसला कुन इलेक्शन है। इस इलेक्शन ने इस मुल्क की सिमत तयन करनी है। हम आज तक 75 ईयर्स अब इस मुल्क को बने हो गए हैं, लेकिन हमने जाना इस्लामाबाद है और हमारा रुख मुल्तान की तरफ है। तो हम इस्लामाबाद तो कभी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि हमारा रुख ही नहीं ठीक। तो ये हमने इस मुल्क की सिमत ठीक करनी है, इसको सही ट्रैक पर लगाना है। और ये आपके मुस्तकबिल का इलेक्शन है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस इलेक्शन वाले दिन जब वोट डालने जाएं, तो अपनी बिजली का बिल उस महीने का उस सुबह ज़रूर देख के जाइएगा। और उसके बाद अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट फिर भी डालना चाहते हैं तो फिर ज़रूर डालें। और अगर आपका ज़मीर आपको मुलामत करे तो अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनें और इमरान खान को वोट दें। और उस शख्स को वोट दें जिसने हुर्मत रसूल का पहरा दिया है, जिसने रियासत मदीना की बात की है, जिसने इस्लाम का झंडा उठाकर अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम का मुकदमा लड़ा है। तो ये नौजवानों का इलेक्शन है, ये मेरा इलेक्शन नहीं है, ये आप सबका इलेक्शन है। इसमें भरपूर हिस्सा लें और हमारा साथ दें इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, अपनी तकदीर बदलने के लिए। बहुत शुक्रिया। जी जी, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ यंग लीडर बैरिस्टर सुहेल मंजूर गिल थे और उनके साथ आपने हमारी जो गपशप थी, चिट चैट थी, वो सुनी है। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क में अमन आए, तरक्की आए, खुशहाली आए और हम सब यहाँ पे खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। ना सिर्फ हम सब बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस मुल्क में खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त किसी और मेहमान के साथ आपके सामने मुखातिब होंगे। बहुत शुक्रिया।